Hello student, myself Professor Ajay Yadav. In today's session, we are discussing about sexual reproduction in flowering plant. Okay, so first of all, what is flower? Okay, flower क्या है? Okay, so flower is a modified shoot. क्या है? Flower is a modified shoot which is nothing but reproductive part of plant. Okay, तो flower क्या है? Flower is a modified shoot. Modified shoot क्या है? Modified shoot है. And flower is an reproductive walls of plant. Okay, so flower are basically two types. कितने types के होते हैं? Flower are basically two type. Okay, one is unisexual flower and other is bisexual flower. क्या होते हैं? Bisexual flower होते हैं. So unisexual means those flower contain only one reproductive part is called as unisexual. Either it contain male gamete और फीमेल गैमेट. ओके, या तो ये एंड्रोशियम कंटेन करेगा या तो गाइनोशियम कंटेन करेगा. एक ही एट अ टाइम एक ही गैमेट रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे. ओके, बाइसेक्सुअल मींस दोज फ्लावर कंटेन बोथ गैमेट. क्या कंटेन करते हैं? बोथ गैमेट present in one flower. दोनों गैमेट अगर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर. ओके, तो मेल एंड फीमेल गैमेट बोथ आर प्रेजेंट इन one flower is called as bisexual flower. Okay, so flower consist two whorls. कितने? Flower is a reproductive whorl, so it consists two whorls. कितने whorls consist करता है? दो whorls consist करता है. One first is called as essential whorls and other is called as non-essential whorls. क्या बोलते हैं? non-essential whorls बोलते हैं. So essential whorls are fertile. क्या होते हैं? It is fertile in nature, whereas non-essential whorls are sterile. कैसे होते हैं? Sterile होते हैं. ओके, अब essential whorls में कौन कौन आते हैं? So दो चीजें आती है. कौन सी? One is called as male reproductive organ, that is nothing but androecium, and other one is female reproductive whorls is called as gynoecium. Okay, non-essential whorls are sterile in nature and that is consist in non-essential whorls consist two part. One is called as calyx and other is called as corolla. Okay, corolla is also nothing but petal. क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं. And calyx is called as sepal. क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं. Okay, so androecium consists unit that is
और एंड्रोशियम इज मेड बाय एंथर एंड फिलामेंट। क्या? एंथर एंड फिलामेंट। Whereas gynoecium consists, okay, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्या क्या कंसिस्ट करता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, दैट इज नथिंग बट कलेक्टिवली नथिंग बट कार्पेल। क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं। ओके, देन calyx. Calyx are green in color and which is attached to thalamus part. Thalamus is the swelling part of flower is called as thalamus. So thalamus को क्या है? Green leaf like structure attached रहेंगे तो उसको बोलेंगे calyx बोलेंगे। Okay, and petal or corolla, that is non-essential walls of flower. Okay, petal are bright in color and it attract the insect for pollination, and the main function of sepal protect the flower during flower bud condition. तो ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोटेक्टिव इन नेचर। ओके, एंड प्रोटेक्ट किससे किससे करते हैं? फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड एनिमल, ग्रेजिंग एनिमल। इससे ग्रेजिंग एनिमल। ड्यूरिंग फ्लावर बर्ड, कभी ड्यूरिंग फ्लावर बर्ड कंडीशन। अगर बर्ड कंडीशन में है फ्लावर तो कैलिक्स क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। सो करोला आर ब्राइट इन कलर, ब्राइट इन कलर एंड इट इज सेंटेड। कैसा होता है? करोला जो होते हैं, सनफ्लावर के करोला जो होते हैं सेंटेड होते हैं, उसमें से फ्रेग्रेंस आता है तो वो क्या करते हैं? सेंटेड होते हैं। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रेग्रेंस इट अट्रैक्ट दी insect फॉर पॉलिनेशन। किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो एंड्रोशियम, अभी एंड्रोशियम इज मेड बाय एंथर एंड फिलामेंट। सो एंथर अटैच्ड एट द थैलेमस रीजन और एट द पेटल रीजन। ओके, कि कहीं भी डिफरेंट फ्लावर में, कोई फ्लावर में क्या होता है? स्टेमन अटैच टू थैलेमस और किसी फ्लावर में क्या हो गए? अटैच टू पेटल। ओके, देन अब ये जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर कैसे मैंने दो टाइप के बताया था कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गए तो उसमें ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा, ईदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर मेल है तो उसको क्या बोलेंगे? अगर मेल गैमेट प्रेजेंट है तो उस टाइप के फ्लावर को बोलेंगे क्या? स्टैमिनेट फ्लावर। क्या बोलेंगे? स्टैमिनेटेड फ्लावर। ओके, अगर फीमेल फ्लावर मीन्स फीमेल गैमेट कंसिस्ट करती है, मेल नहीं है वहां पे, ओनली फीमेल है। फीमेल में क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी है तो उसको बोलेंगे पिस्ची और पिस्टिलेटेड फ्लावर। पिस्टिलेटेड फ्लावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लावर बोलेंगे। ओके, सो फ्लावर ये दो टाइप के हो गए। बाइसेक्सुअल में क्या होगा? दोनों मेल गैमेट एज वेल एज फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन वन फ्लावर इज नथिंग बट बाइसेक्सुअल फ्लावर। सो यहां पे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर पढ़ रहे हैं। अभी यहां पे मैंने लिखा है पेडीसेल। सो व्हाट इज अ पेडीसेल? पेडीसेल is the stalk of flower. So stalk जो है फ्लावर का उसको क्या बोलेंगे? stalk of flower is nothing but पेडीसेल।
ओके, यहाँ पे पेडिसेल किसको बोलते हैं? जो ये स्टॉक है फ्लावर का उसको पेडिसेल बोलते हैं। ओके, सो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी इज फॉर्म कार्पेल, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल्स। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे, अब जो फ्लावर है, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सो इट कंसिस्ट और रिप्रोडक्शन इन फ्लावर कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेज। किसमें? तो फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। ओके, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर कंप्लीट इनटू 3 phases. Okay, or 3 event takes place. So first is pre fertilization stage. क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज होता है। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में क्या क्या होते हैं? सो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या होता है? मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है एंड मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। व्हाट इज अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट एंड मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। देन सेकेंड इवेंट है डबल फर्टिलाइजेशन। कौन सा है? डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? वन मेल गैमेट फ्यूज with egg and other male gamete fuse with secondary और पोलर न्यूक्लियस। कैसा? पोलर न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज होगा, तो उसको बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा? सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ सीड, फ्रूट एंड एम्ब्रियो। क्या होगा? सो फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ और डेवलपमेंट ऑफ लिखोगे, फॉर्मेशन नहीं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, देन फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स, सीड जिसको बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सीड, देन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। क्या बोलते हैं? फ्रूट फॉर्म होता है। सो फ्रूट इज नथिंग बट ओवरी। क्या है? ओवरी बोलते हैं। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेज और 3 इवेंट टेक्स प्लेस: प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो इन प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। क्या से? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फॉर्म होते हैं। सो मेल गैमेट फॉर्म इन एंथर। कहां पे? एंथर में फॉर्म होते हैं। सो मेगास्पोरोजेनेसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट विच इज टेक्स प्लेस इन ओवरी और इन एम्ब्रियो सैक। कहां पे होता है? एम्ब्रियो सैक के अंदर फॉर्म होते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, तो अभी हम यहां पे बात कर लेते हैं फीमेल। कंप्लीट फ्लावर कंसिस्ट 2 वर्ड्स, वन इज कॉल्ड एज इसेंशियल एंड अदर इज कॉल्ड एज नॉन इसेंशियल। जो कि इसेंशियल में कौन आते हैं? स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी एंड एंड्रोशियम मींस स्टेमेन
means stamen consists two part. One is called as anther, which is bilobe, and other is filament form. So filament are sterile, whereas anther are fertile. क्या होते हैं? Fertile होते हैं. So anther is a connectivity which is connect the thalamus or petal to anther. तो ये क्या है? एक कनेक्टिविटी ब्रिज का काम करता है. So stamen is formed by anther and filament, and carpel means ovary. Ovary and style and stigma join together and form carpel, which is nothing but gynoecium. So androecium and gynoecium क्या है? Essential walls of flower, but petals and sepals क्या है? नॉन इसेंशियल वर्ड्स है. ओके, तो अभी अगर पेटल फ्री है, इफ पेटल आर फ्री मींस एक दूसरे से अटैच नहीं है. फ्री का मतलब होता है यहाँ पे एक दूसरे से अटैच नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, ज्वाइंट नहीं है, तो उस पेटल को क्या बोलेंगे? फ्री पेटल बोलेंगे. इफ पेटल आर फ्री, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीपेटलस. क्या बोलेंगे? पॉलीपेटलस. अगर फ्यूज है मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्यूज है तो पेटलस बोलेंगे. क्या बोलेंगे? पेटलस बोलेंगे. सेम थिंग यहां सेपल में भी होगा. सेपल में क्या होगा? अगर फ्री है तो उनको बोलेंगे पॉलीसेपेलस. क्या बोलेंगे? पॉलीसेपेलस. अगर फ्यूज है तो उसको बोलेंगे गैमोसेपेलस. क्या बोलेंगे? गैमोसेपेलस बोलेंगे. यहां तक क्लियर है? तो अभी हमारे पास में क्या है? एक हिबिस्कस फ्लावर है. ये हिबिस्कस का फ्लावर है, एंड ये हिबिस्कस के फ्लावर को अभी हम एक एक करके देखेंगे. तो यहाँ पे देखो, ये ग्रीन कलर के पार्ट दिख रहे हैं छोटे छोटे. ये क्या है? छोटे छोटे दिख रहे हैं ग्रीन कलर के पार्ट. तो इसको बोलते हैं क्या? यहाँ पे देखो सेपल लिखा है. अब ये सब फ्री है, कैसे? एक दूसरे से जुड़े नहीं है, तो इसको बोलेंगे पॉलीसेपेलस. ओके, एंड दिस इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर, दैट इज नथिंग बट पेडीसेल. तो ये रेड कलर का पेटल्स दिख रहे हैं. देखो सब पेटल्स एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है. ये फ्री है पेटल्स. ओके, ये पेटल्स कौन सा है? पॉलीपेटलस है. ओके, यहां पे देखोगे अब ये येलो कलर के छोटे छोटे दिखते रहेंगे. तो ये येलो कलर के जो है वो क्या है? एंथर है. एंड यहाँ पे स्टॉक अटैच है. क्या है? स्टॉक अटैच है. तो ये क्या है? फिलामेंट है. एंड यहाँ पे टिप पे देखोगे स्टिग्मा है. फिर ये जो ट्यूब है इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं. एंड ओवरी पार्ट इसके ग्रीन कलर के अंदर रहेगा, मींस फ्लावर के अंदर रहेगा. अभी हम फ्लावर डाइसेक्ट करके मैं तुमको दिखा देता हूं. See, this is लोअर बेस, और एकदम लोअर पोजीशन पे जो पेंडुलस फॉर्म में ये येलोइश कलर का दिखता होगा, तो ये क्या है? ओवरी. तो ये पूरा हमने निकाला है. ये एंथर को अगर हम निकाल देते हैं, ये पूरा कार्पेल है. मींस इसमें स्टिग्मा है. स्टिग्मा प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टाइल. एंड स्टाइल क्या है? इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज कनेक्टेड टू ओवरी. ये ओवरी को कनेक्टेड रहता है. When pollen grain pollinated on stigma, so stigma contains sugary substance. Due to presence of sugar, it attach or stick on the tip of stigma, and pollen grain start to germinate and form pollen tube. And pollen tube
contain two male gamete and which is reached to ovary and then fertilization process takes place. Okay.